about easiest way of doing physical examination. So before starting the physical examination, we have to introduce ourselves to the patient to gain the cooperation and feel comfortable to the patient. So after that, we have to identify the patient by the help of hand tie or patient file. And after that, we have to make sure that the privacy of patient by providing screening. Then make sure the comfortable position and proper safety of the patient by observing the room. Then proper light, privacy should be provided to the patient. Hello, my name is Kamini and I am your nurse today. So how are you? So let me check your hand tie. What's your name? Explain the procedure to the patient and explain the step by step of the procedure. एक्टिव तो एग्जामिनेशन करूँगी जिसमें आपके पूरे जो बॉडी है उसके पार्ट्स को हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे. आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं? आप बैठना चाहेंगे या लेटना चाहेंगे? After preparing the client, we have to prepare the articles. So articles required for physical examination: sphygmomanometer to check the BP, stethoscope. It is used for BP measurement to hear the sound, heart sound, lung sound. Then gloves, a pair of gloves to examine the pelvis and to prevent from cross infection. Towel or bed sheet to cover the patient. We have only expose those parts we have to examine. Tongue depressor to visualization of pharynx and larynx. Then this is Cuspo speculum. This is used for examination of vagina. Fetoscope. This is used for to hear the sound of fetal heart rate, heart sound. Inch tape to measure the height of the client and to measure the abdominal girth if patient is pregnant. Then thermometer. It is used for taking TPR. Cotton wisp for the assessment of reflexes. This is proctoscope. This is used for examination of rectum. Then this is nasal speculum. It is used for examination of nasal cavity. Tuning fork. It is used for to measure the hearing capacity. Knee hammer. It is used for to check the reflexes. Torch. It is used for to visualization of organ and to assess the reaction of pupils. Laryngoscope to visualization of larynx. Otoscope to visualization of inner ear. Screening to provide privacy to the patient. Weight machine to measure weight of the patient. After preparing the article, we have to do hand washing and wear gloves. Follow all the steps of hand washing. Wear gloves. So जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम लोग को पेशेंट को कवर करके रखना है बेडशीट से या टॉवेल से. तो जितना पोर्शन हमको एग्जामिन करना है वही पोर्शन को हम लोग एक्सपोज करेंगे, बाकी पेशेंट को हम लोग कवर करके रखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू असेस जनरल अपीयरेंस, कॉन्शियसनेस, नरिशमेंट, हेल्थ ऑफ द पेशेंट. सो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, जनरल असेसमेंट करना है, उनको कॉन्शियसनेस चेक करना है. तो उसके लिए हम लोग पेशेंट से उनका नेम क्या है, नाम क्या है और कौन सा कहाँ पे हैं वो, और आज का डेट क्या है, टाइम क्या हो रहा है, वो सब पूछ सकते हैं. अच्छा, अभी कैसे लग रहा है आपको? अच्छा, आज का डेट क्या है? 10 जून. ठीक है, तो मैं आपको एग्जामिनेशन कर रही हूँ. इसके लिए मुझे सबसे पहले आपका सिर के बाल जो है, सिर कैसा है, वो सब देखना रहेगा. ठीक है, आप कंफर्टेबल हो? After assessing the general appearance of the patient, we have to assess the height and weight of the client. So हम लोग इंच टेप का यूज़ कर
करके पेशेंट का जो है हाइट मेज़र करना है, पेशेंट को खड़े होकर बोलना है और मेज़र करना है उनका हाइट कितना है। देन वेट मशीन का यूज़ करके पेशेंट का वेट लेना है। देन आफ्टर असेसिंग द हाइट एंड वेट ऑफ द क्लाइंट, we have to assess the TPR, temperature, pulse and respiration of the patient. So after cleaning of the thermometer, auxiliary से हम लोग अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो 3 मिनट्स के लिए हम लोग को असेस करना है। We have to assess the BP of patient. First we have to assess the head and shape of the head, skull. तो ये क्लीन है कि नहीं वो देखना है, डेंड्रफ तो नहीं है और शेप नॉर्मल है कि नहीं, हेयर का कलर क्या है वो सब देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग फेस में देखते हैं, फेस में असेस करते हैं कुछ रैशेस तो नहीं है। देन आईज के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेशेंट अगर बैठ सकते हैं तो उनको बैठने के लिए बोलना है। इससे हम लोग आई मसल्स का प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे आईज का मूवमेंट के लिए। आई के मूवमेंट के लिए हम लोग एक फिंगर सामने रखते हैं पेशेंट के। देन फिंगर को मूव करेंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे विदाउट मूविंग द हेड, आई बॉल को मूव करके फिंगर को देखना है। सो ये फिंगर है, इसको आप देखेंगे। देन आई के विजन के लिए हम लोग स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग मायोपिया, हाइपरोपिया चेक करते हैं। पेशेंट को कुछ आई विजन में प्रॉब्लम तो नहीं है वो चेक करते हैं। देन आइज के बाद हम लोग नोज देखते हैं, एक्सटर्नल एयर्स देखते हैं, कुछ प्रस तो नहीं प्रेजेंट है और नेजल सेप्टम जो है उसमें कुछ डेविएशन तो नहीं है वो चेक करते हैं। देन नोज़ के बाद माउथ चेक करना है। माउथ में हम लोग लिप्स का कलर चेक करते हैं, रेडनेस तो नहीं है और स्टमटाइटिस तो नहीं हुआ है। देन टीथ का डिस्कलरेशन चेक करेंगे, टंग्स देखते हैं, टंग्स प्रॉपर है कि नहीं देखते हैं। Stabilization of larynx and pharynx we have to use tongue depressor. सो टंग डिप्रेसर का यूज़ करके हम लोग टंग्स को प्रेस करते हैं। देन टॉन्सिल्स देखते हैं, टॉन्सिल्स को चेक करेंगे, लैरिंक्स को देखेंगे, फेरेंक्स को चेक करते हैं। देन उसके बाद हम लोग नेक रीजन को चेक करते हैं, लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन तो नहीं है वो चेक करना है, ट्रैकिया प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं वो चेक करना है, थायराइड ग्लैंड में कुछ इन्फ्लामेशन तो नहीं है वो चेक करना है। देन अपन कैरोटिड पल्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ईयर एग्जामिनेशन, वी हैव टू असेस द एक्सटर्नल ईयर्स फॉर एनी इन्फ्लामेशन, क्रस्ट और कोई डिस्चार्ज तो नहीं है वो चीज़ के लिए हम लोग असेस करेंगे। देन इंटरनल ईयर एंड मिडिल ईयर के लिए हम लोग ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं। ऑटोस्कोप का यूज़ करके मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर में कुछ इन्फ्लामेशन तो नहीं है वो सब हम लोग चेक करते हैं। हियरिंग कैपेसिटी असेस करने के लिए हम लोग ट्यूनिंग फोक का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पहले वाइब्रेट करके ईयर के पास लेके जाएंगे जिससे हम लोग बोन कंडक्टिविटी एंड एयर कंडक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करेंगे। थॉरैक्स का एग्जामिनेशन करना है, देन एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है। थॉरैक्स का एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग सिमेट्रिकल लेवल देखते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो चेस्ट है बायलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन देखते हैं, प्रॉपर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं वो देखना है। देन फीमेल पेशेंट में हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो उनको बता के देना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर लिम्फ नोड्स अगर कुछ प्रेजेंट है, एयर एंट्री अच्छे से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं या फ्लूइड फिल्ड है कि नहीं वो सब चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं कि कुछ सिमेट्रिकल है प्रॉपर और इसमें कुछ स्कार वगैरह तो नहीं है, नोट्स वगैरह तो नहीं है, वो सब हम लोग चेक करते हैं। वी हैव टू डू पैल्पेशन। सो पैल्पेशन के लिए हम लोग फिंगर पैड का यूज़ करेंगे। देन पैल्पेट करके देखते हैं कुछ नोट्स तो प्रेजेंट नहीं है। देन ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ टेंडरनेस तो नहीं है वो सब हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर देन इसके बाद होता है परकशन। परकशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपना जो हैंड है एक यूज़ करके इसमें हम लोग टैप करके देखते हैं कि लंग्स में फ्लूइड या गैस जो है वो फिल्ड तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग या तो डायरेक्ट परकशन कर सकते हैं जिसमें हम लोग फिंगर्स का यूज़ करके डायरेक्ट चेस्ट लेवल पे हम लोग परकशन टैप करके देखेंगे, जिससे हम लोग जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो इनडायरेक्ट परकशन होता है उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज़ करके चेस्ट लेवल पे रखते हैं, देन अदर हैंड से उसको टैप करते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग गैस अगर है, फ्लूइड अगर फील्ड है वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। देन अस्कल्टेशन में हम लोग हार्ट साउंड और अपाइकल पल्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए हार्ट साउंड का मेजर करने के लिए हम लोग डायफ्राम असेस द अपाइकल साउंड जस्ट बिलो द निप्पल। देन हम लोग को दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में एयर एंट्री प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। देन आफ्टर चेस्ट वी हैव टू असेस द एब्डोमेन। सो एब्डोमेन में हम लोग एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अपर क्वाड्रेंट 2 अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट एंड राइट अपर क्वाड्रेंट, देन 2 राइट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट।
तो इसके लिए हम लोग एब्डोमेन में सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, देन अस्कल्टेशन करेंगे, देन परकशन करेंगे एंड पैल्पेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं कोई स्कार तो प्रेजेंट नहीं है, कोई सर्जरी के मार्क्स तो नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कुछ भी जो मार्क्स हो जाते हैं, स्कार हो जाते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो सब चेक करना है। देन इसके बाद अस्कल्टेशन करते हैं। अस्कल्टेशन में हम लोग बबल साउंड सुनेंगे। सो अगर बबल साउंड इंक्रीज है तो वो उस केस में, डायरिया के केस में बबल साउंड जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इन केस ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो उस केस में जो बबल साउंड है वो डिक्रीज हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग को अस्कल्टेशन के बाद परकशन करके देखना है। परकशन के लिए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परकशन करते हैं। अपना जो लेफ्ट हैंड है वो प्लेस करके अदर हैंड से हम लोग टैप करके देखते हैं अगर कुछ फ्लूइड है, फिल्ड है तो नहीं है। गैस अगर फिल्ड है तो वो हम लोग चेक करते हैं। अगर साउंड है, रेजोनेंस आ रहा है, हाइपर रेजोनेंस है या फ्लूइड फिल्ड है, असाइटिस है, उस केस में जो साउंड है वो अलग प्रोड्यूस होता है। देन आफ्टर परकशन वी हैव टू पैल्पेट द ऑल 4 रीजन। हम लोग अपेंडिसाइटिस के लिए मैकबनी पॉइंट पे पैल्पेट करके देखते हैं। अगर टेंडरनेस प्रेजेंट है तो मे बी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। वैसे ही सारे जो चारों रीजन है उसको हम लोग पैल्पेट करके मेजर करते हैं। Examination of the abdomen, we have to assess for extremities. So first we have to assess upper extremities. Upper extremities में हम लोग को फ्लैक्शन करके देखना है, एक्सटेंशन करके देखना है, और पेशेंट को खुद भी बोलना है कि वो अपने हैंड को रेस करे। देन अपन इसमें रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। नी हैमर का यूज़ करके हम लोग रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। सो एल्बो जॉइंट में हम लोग इसको रिफ्लेक्स अगर टैप करते हैं तो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग को चेक करना है। देन एक्सट्रीमिटीज़ में पल्स देखते हैं, रेडियल पल्स मेजर करेंगे, ब्रेकियल पल्स जो है ये सब हम लोग मेजर करते हैं। देन एक्सट्रीमिटीज़ प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। वैसे ही हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी लोअर रेंज ऑफ मोशन देखते हैं। उसके लिए भी हम लोग जो पल्स रहता है, फीमोरल पल्स है, वो असेस करेंगे। देन मोशन देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, फ्लैक्शन एक्सटेंशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। देन इसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जो एक्सट्रीमिटीज़ का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग अपने हैंड को फीट्स में प्रेस करते हैं। देन पेशेंट को बोलते हैं कि वो प्रेशर लगा के अपना एक्सट्रीमिटीज़ ऊपर करें। देन आफ्टर दैट वी हैव टू असेस द बैक ऑफ द पेशेंट। सो बैक साइड में हम लोग कुछ स्कार जो प्रेजेंट नहीं है, और बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप एयर एंट्री प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। देन बैक में स्कॉलियोसिस तो नहीं है और लॉर्डोसिस तो नहीं है, काइफोसिस तो नहीं, वो चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का कर्वेचर जो रहता है वो लेटरल डेविएशन हो जाएगा, या बैकवर्ड साइड में या फॉरवर्ड साइड में अगर ज़्यादा बेंड है स्पाइनल कॉर्ड तो वो हम लोग असेस करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो रहता है वो जेनेटेलिया एंड रेक्टम होता है, जिसमें हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कुछ वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है इन फीमेल पेशेंट। अगर इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, तो उनमें जो टेस्टिस है वो डिसेंड हुआ है कि नहीं प्रॉपर। इन्वाइनल कैनाल में अगर टेस्टिस रह जाता है, न्यूबॉर्न जो है उसको हम लोग चेक करते हैं। देन इन्फ्लामेशन तो नहीं है, टेस्टिस वगैरह नॉर्मल है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। देन रेक्टम एरिया में हम लोग हेमोरॉइड्स वगैरह चेक। At last we have to do neurological examination. For neurological examination we have to check the taste of patient. So हम लोग पेशेंट को कुछ भी शुगर या फिर कुछ अगर खट्टा वाला चीज़ है या कुछ चीज़ है, वो सब चीज़ टेस्ट करने के लिए बोलना है। Then Patellar reflex is also known as knee-jerk reflex. In normal condition, there is extension in lower limb. After physical examination, we have to provide proper comfortable position to the patient and cover the patient properly and make comfortable to the patient. प्लेस करना है, हैंड वॉश करना है, डॉक्यूमेंट करना है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी फाइंडिंग है, वो सब हम लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है नर्सिंग चार्ट में। एंड उसके बाद अगर कुछ स्पेसिमेन लिए हैं, फिजिशियन अगर प्रिस्क्राइब किए हैं कुछ स्पेसिमेन लेने के लिए, तो वो स्पेसिमेन को हम लोग को लेबल लगा के लैब में भेजना है।